عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم، فیڈرل اور پنجاب بورڈ، نئی درسی کتاب جس کا ہم نے حصہ غزل شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غالب کی غزل کے پہلے 4 اشعار جو ہیں ان کی تشریح کی تھی۔ آج ہم آخری 4 اشعار جو ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ بیٹا، عشق و محبت اور ہجر و فراق دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عشق سچا وہی جس میں ملتی نہیں منزلیں۔ یہ ہجر و فراق عشق و محبت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن محب اور محبوب دونوں کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہجر و فراق کا شکار انسان دنیا اور اس کے رنگ و رونق سے بے پرواہ اپنے ہی غم میں مبتلا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر بھی اسی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو یہ نہ دیکھ کہ تیری جدائی نے میرا کیا حال کر دیا ہے، تیرے بعد میں کس حال میں جی رہا ہوں، بلکہ تو یہ دیکھ کہ تو کس رنگ میں ہے، یعنی اس جدائی نے تیری حالت کیا بنا دی ہے۔ یعنی اگر آپ حوالے کے طور پہ شعر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ لالی اکھیاں دی پئی دسدیے، لالی اکھیاں دی پئی دسدیے، روئے تسیویو روئے اسیویاں۔ یعنی ہجر و فراق نے ہم دونوں کو ہی غم زدہ کر دیا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ جی کر ہم دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ تشریح لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے علاوہ دوسری تشریح لکھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو صنعت تضاد بھی موجود ہے، پیچھے اور آگے، تو یہ صنعت تضاد بھی ہوگی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں بیٹا، غالب کا جو یہ شعر ہے اس میں ہجر و فراق کی شدت، عاشق کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور محبت کی بے خبری کا نہایت دلگزار انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شعر اگر ہم کہیں در حقیقت اس عشق کی اس انتہا کو ظاہر کرتا ہے جہاں محب یعنی عاشق اپنی حالت کی فریاد کرنے کی بجائے محبوب کی حالت کو اس کے سامنے رکھ کر اس کے احساس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ غالب بھی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو یہ مت پوچھ کہ تیری جدائی کے بعد میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں کس دکھ، کس اذیت، کس غم کے عالم میں جی رہا ہوں۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی سانسوں، مرجھائے چہرے اور ٹوٹے دل کا حال بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تو خود دیکھ۔ یہاں رنگ سے مراد کیا ہوگا؟ صرف چہرے کا رنگ نہیں، بلکہ محبوب کی اندرونی کیفیت، بدلتی ہوئی طبیعت اور ممکنہ احساس ندامت بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری حالت تو ایک طرف، ذرا اپنے دل کی حالت دیکھ کہ تو خود میرے سامنے آ کر کیسا لگتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی انداز ہے جو غالب کے اسلوب کا خاصہ ہے کہ وہ محبوب کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جس درد، ہجر اور تنہائی سے میں گزرا ہوں اس کا عکس خود تمہارے اندر بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور اگر تم نے غور کیا تو شاید تمہاری حالت جو ہے وہ بھی مجھ سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ شعر کا پیغام صرف عاشق کے دکھ کا نہیں بلکہ محبوب کے اندر بھی جھانکنے کی دعوت ہے۔ یہی غالب کی عظمت ہے کہ وہ ہجر کو محض درد کا اظہار نہیں بناتے، بلکہ اس میں شعور، مشاہدے اور نفسیاتی گہرائی پیدا کرتے ہیں جو انہیں ہر دور کا شاعر بناتی ہے۔ بیٹا اگر ہم دیکھیں تو شاعر جو ہیں ان کا جو دور ہے وہ تو 18ویں صدی ہے نا، یعنی وہ 1797 میں پیدا ہوئے، لیکن وہ اسی دور کے شاعر محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی کی بات ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر،
काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। इस शेर में भी सनत तजाद का जिक्र है। ईमान का उलट कुफर, काबा का उलट कलीसा, कलीसा कहते हैं गिरजा को, पीछे का उलट आगे। तो यहाँ पर ईमान की जो जिद है कुफर, गालिब अगर हम देख बेटा ये जब भी आप तशरीह करेंगे ना तो ये दो लाइनें ज़रा हर शेर में लिख लीजिएगा। गालिब की शायरी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। उनकी शायरी ये दिखाने की कोशिश करती है कि इंसानी ज़िंदगी और इंसानी फितरत कैसी है और उसकी मजबूरियाँ और पेचीदगियाँ क्या हैं, उनकी कशमकश और कशाकश की नौयत क्या है। तशरीह तलब शेर में भी गालिब यानी इस शेर में भी गालिब इसी कशमकश का इजहार कर रहे हैं। शायद ये नेकी और बदी की कशमकश है। जहाँ कुफर उसे गुनाह की तरफ माइल करता है तो ईमान उसे बचने की तरकीब देता है। कुफर यानी गुनाह में कशिश है तो ईमान में सादगी है। गुनाह की कशिश बार बार इंसान को अपनी तरफ माइल करती है, जिससे ईमान की आजमाइश होती है। गालिब ये कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बेटा अगर आप देखें तो गालिब के ज़माने में ही अंग्रेज़ जो है ना वो हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरे। वो साथ ही अपनी सकाफत और तहजीब व तमद्दन भी साथ लाए थे, जिसमें शख्सी, मजहबी और राय की आज़ादी जो है वो आम थी और जिससे अहले इल्म का बड़ा तबका तेज़ी से मुतासिर हो रहा था। गालिब भी ये कहते हैं कि नया तमद्दुन और नया अंदाज़ फ़िक्र मुझे अपनी तरफ राग़िब कर रहा है, मगर मैं जिस दीन का मानने वाला हूँ वो मुझे टस से मस होने नहीं देता। हज़ार कलीसा मेरे सामने हूँ मगर काबा जो है उससे मेरा रिश्ता उतना मुस्तहकम है कि वो टूट ही नहीं सकता। यहाँ पर कलीसा और काबा ये दोनों जो है ना बेटा ये इस्तियारा भी है नई तहजीब के, यानी जो अंग्रेज़ लाए थे, और पुरानी तहजीब जो मुसलमानों की सदियों की अपनी रिवायात थी। तो इन दोनों तहजीबों के बीच में जो कशमकश है, काबा और कलीसा एज़ा इस्तियारा भी हम कह सकते हैं कि इस शेर में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। और काबा और कलीसा की मुनासबत से ईमान और कुफर भी आए हैं। आप इसकी तशरीह यूं भी कर सकते हैं कि गालिब की शायरी इंसानी फितरत की गहराइयों में उतरकर उस कशमकश को बयान करती है जो हर हसास दिल और बाशऊर जहन में चलती है। ये शेर उस दाखिली जंग और रूहानी तज़ब्ज़ुब और फ़िक्री तसादुम की अक्कासी करता है जिससे शायर गुजर रहा है। गालिब इस शेर में न सिर्फ मजहबी और रूहानी कैफियत को बयान करते हैं बल्कि उस दौर की समाजी और तहजीबी तब्दीलियों की तरफ भी इशारा करते हैं। बेटा मैंने पहले भी बताया कि उनकी माशरत जो है, तहजीब और सकाफत जो है वो भी बदल रही थी। तो यहाँ गालिब यही बता रही हैं कि ईमान एक तरफ मुझे रोकता है, मुझे मेरी हदूद में रखता है, मुझे मेरे मजहबी असूलों से वाबस्ता रखता है, जबकि जो कुफ्र है यानी मजहबी तहजीब जो है, जो नई और रोशन ख्याल है और फ़िक्र नई है और आज़ादी भी है और कशिश भी है जिसकी तरफ मेरा दिल माइल होता है। तो यहाँ पर शायर जो है इन दोनों तहजीबों का मुआजना कर रहे हैं। तो पहले भी बताया बेटा कि काबा इबादत गाह नहीं बल्कि पूरी मशरकी रूहानी रिवायत की अलामत है जो गालिब की शख्सियत का बुनियादी जुज़ है। अब ये भी कह सकते हैं कि इस शेर में अलामत निगारी भी इस्तेमाल हुई है। और कलीसा सिर्फ गिरजा नहीं बल्कि मगरब की उस सकाफत की नुमाइंदगी है जो उस वक्त हिंदुस्तान पर छा रही थी। शायर कहता है कि मेरे पीछे काबा है, यानी मैं जिस माशरे, जिस तरबियत और जिस अकीदे से आया हूँ वो मजबूत और रासिख है, लेकिन मेरे सामने कलीसा है यानी मगरबी तमद्दुन, इल्म फ़िक्र की आज़ादी, इनफरादियत और जदीदियत मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर इस शेर में अगर हम ये कहें कि ये शेर जो है 1857 की जंगे आज़ादी के पस मंज़र में अगर लिखा गया है तो वो जो तहजीब है उसका तज़किरा इसमें हो रहा है। बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, जुम्बिश कहते हैं हरकत, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागिरो मीना मेरे आगे।
सागर कहते हैं बेटा प्याले को, मीना कहते हैं सुराही को। तो यहाँ पर सागर और मीना के मानी प्याला और सुराही के हैं, यानी शराब का साजो सामान। बेटा जो सूफी शोरा है ना, उन्होंने शराब को इश्क हकीकी और मार्फत इलाही के सफ़र की एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। गालिब भी इसी रिवायत के तसलसल में अपनी मुनफरिद आवाज़ शामिल इसमें करते हैं। गालिब की शायरी में शराब इश्क, रूहानी तजर्बात या दुनियावी परेशानियों से फरार की नुमाइंदगी है। अगर आप इसमें हवाले का शेर लिखना चाहें ना, तो आप लिख सकते हैं, मैं से गर्ज़े निशात है किस रूसिया को, मैं से गर्ज़े निशात है किस रूसिया को, एक कोनाए बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। आप इसके साथ हवाले के तौर पर ये शेर लिख सकते हैं। अब बेटा आ जाते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। मिर्ज़ा गालिब मार्फत के उसी मकाम पर हैं। वो कहते हैं कि अगरचे उम्र ज़्यादा होने की वजह से मैं नातवानी का शिकार हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुझ में अब दमखम नहीं है। ठीक है, मेरे हाथों में वो ताकत नहीं जो शराब का प्याला यानी ज़िक्र खुदा के लिए मुतहरिक हो सके। बेटा जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, तो इबादत में उस तरीके की वो जो है ना, क्योंकि इंसान नातवाना हो जाता है ना, नातवा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो सजदा लंबे लंबे सजदे नहीं कर सकता, वो मस्जिद में अगर जा रहा है तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर भी इसी तनाजुर में आप इस शेर को ले सकते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो मोहब्बत है ना अल्लाह से, इश्क का जो प्याला है यानी ज़िक्र खुदाबंदी जो है, वो अभी भी मेरा कम नहीं हुआ। तो देखिए बेटा, आईना जो होती है ना, वो दिल की आंखें जो होती हैं वो अपने आपके दिल का आईना होती हैं। जो कुछ आपकी आंखें देखती हैं, दिल उसी का असर कबूल करता है। इसीलिए गालिब भी कहते हैं कि सागर व मीना यानी शराब का प्याला और सुराही मेरी आंखों के सामने रहे तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अगर हम देखें ना बेटा, तो गालिब के अशार हमेशा एक से ज़्यादा मायने की तहों पर मुश्तमिल होते हैं, और ये शेर भी उस जहाने मानी का दर खोलता है जिसमें इश्क, रूहानियत, नातवानी मगर जिंदा दिली एक साथ चलते हैं। शायर कहता है कि अगरचे मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही, हाथ साकित हैं, बुढ़ापा या बीमारी मुझे कमज़ोर कर चुकी है, मगर मेरी रूह, मेरी आंखों की चमक और मेरी बातनी तवानाई अब भी जिंदा है। आंखें जो इंसान के बातन की अक्कास होती हैं, गालिब के नज़दीक आंखें वो दरवाज़ा हैं जहाँ से जमाल और कमाल की झलक इंसान के अंदर उतरती है। शेर में सागर व मीना जो है वो सिर्फ शराब का सामान नहीं बल्कि रूहानियत, ज़िक्र खुदा, इश्क हकीकी या मार्फत इलाही का इस्तियारा भी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सागर व मीना जो है वो मार्फत इलाही का इस्तियारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी वो रूहानी मशरूब जो दिल को तस्कीन देता है, जो दिल को सुकून बख्शता है, जो आपके दिल में शौक और वलवला पैदा करता है। तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल किया गया है और वो फिर इंसान को रब से जोड़ता है। सूफियाना रिवायत में शराब को बहुत बार इन मानों में इस्तेमाल किया गया है। गालिब भी इसी रिवायत को अपनी शेरी इनफरादियत के साथ आगे बढ़ाते हैं। गालिब ये कहना चाहते हैं कि अगरचे मैं अब इस शराब इश्क को अपने हाथों से नहीं पी सकता, यानी अमल की ताकत बाकी नहीं रही, मगर मैं उसे देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। मेरे लिए उसका नज़ारा ही काफ़ी है, क्योंकि आंखें वो दरवाज़ा हैं जो दिल की तस्कीन का जरिया बनती हैं। बेटा एक और जाविये से अगर देखा जाए तो ये शेर उस शख्स की तस्वीर है जो जिंदगी की आखिरी दहलीज पर हो, लेकिन उसके दिल में इश्क, तलब और रूहानी ज़ौक़ अभी भी बाकी है। वो कहता है कि जिस्मानी ताकत जाती रही लेकिन रूहानी प्यास जिंदा है। ये शेर इंसान की रूहानी बेदारी, बातनी तलब और इश्क की उस कैफियत को ज़ाहिर करता है जिसमें ज़ाहिरी कमज़ोरियाँ भी महबूब की याद और विसाल की ख्वाहिश को मांद नहीं कर सकती। आप इसकी तशरीह इश्क हकीकी के तौर पर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मुराद इश्क हकीकी ही है कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होना। बढ़ते हैं जो है गज़ल के आखिरी शेर की तरफ, जो कि इसका मक्ता है। हम पेशाओ हम मशरबो हम राज है मेरा,
गालिब को बुरा क्यों कहो, अच्छा वो मेरे आगे। अब यहाँ पर हम पेशा, हम मशरब, हम राज, तो यहाँ पर हम जो है वो साबके के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। आप इसके फ़नी महासन में लिख सकते हैं। हम पेशा कहते हैं एक जैसा रोजगार रखने वाला। हम मशरब का मतलब है एक साथ पीने वाला, यानी साथ उठने बैठने वाला, खाने पीने वाला। हम राज का मतलब है राजदान। गालिब इस शेर में ये कहते हैं कि मेरा महबूब जो है वो मेरा राजदान है, मैं उसका हम नवाला और हम प्याला हूँ। अक्सर हम ये बात कहते हैं ना, हम नवाला और हम प्याला, यानी इकट्ठे उठते बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। तो तुम उसको मेरे सामने बुरा क्यों कह रहे हो, तुम उसकी अच्छाई बयान करो, क्योंकि अगर कोई गालिब को महबूब है तो यकीनन बहुत मुनफरिद और अरफा वाला होगा। दूसरी तरफ ये तमाम बातें गालिब ने अपने आप से कही हैं कि गालिब ही मेरा हम नवाला और हम प्याला है, उसे मेरे सामने बुरा मत कहो। इसका दूसरा मफहूम कुछ इस तरह भी हो सकता है कि गालिब तो मेरा दोस्त है, मेरा हम नवाला और हम प्याला है, मेरा राजदान है, वही काम करता है जो मैं करता हूँ, तो इसलिए उसको बुरा मत करो। यहाँ पर गालिब के जो अंदाज है ना, उनका असलूब, इसमें तंज, खुद पसंदी और पुरअसर अंदाज की झलक नजर आती है। यहाँ शायर बज़ाहिर किसी तीसरे शख्स से मुखातिब है जो गालिब को बुरा कह रहा है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि शायर खुद ही अपने बारे में बात कर रहा हो, गोया एक दाखिली मुकालमा हो रहा है। गालिब कहते हैं कि यानी शायर खुद मेरा हम पेशा है, यानी वो वही काम करता है जो मैं करता हूँ, वो मेरा हम मशरब है, यानी हमारी सोच, तर्ज ज़िंदगी, उठने बैठने की रिवायात एक जैसी हैं, वो मेरा हमराज है, वो मेरे दिल की बात जानता है, तो और वो मेरी तन्हाइयों का साथी भी है। तो इसलिए चूंकि मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है और मैं शुरू से उसको जानता हूँ, तो इसलिए मेरे सामने गालिब को बुरा कहना, वो ना कहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यानी हम ये कहते हैं ना कि अक्सर हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, खुद से मुकालमे कर रहे होते हैं, तो ये एक दाखिली मुकालमा है, यानी गालिब खुद पसंद तो है ही ना, तो वो अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि गालिब अगर मेरे इतना करीब है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो मेरी ज़ात से इतना करीब है, मेरे जैसे ख्यालात रखता है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो तुम उसे मेरे सामने बुरा कैसे कह सकते हो। शायर गोया ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें तनकीद ही करनी है तो किसी और जगह कर लो, मेरे सामने तो ना करो। और अगर गालिब को मैं चाहता हूँ, उसे बरहक मानता हूँ, तो वो ज़रूर कुछ ख़ास और बुलंद मर्तबा रखता होगा। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने आखिरी 4 अशआर जो हैं उनकी तशरीह की है, मुश्किल अल्फाज के मायने जाने हैं, और जो अशार के फ़नी महासिन हैं वो भी जान लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की गज़ल इख्तिताम पजीर होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मश्की सवालात के जवाबात जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो तलबा और तालिबात और असातिज़ा इकराम इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।